हेलो एवरीवन। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए जो स्पेशल बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए है यूट्यूब पर, उसका ये नेक्स्ट डिक्टेशन है। आप लोग इस डिक्टेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से लिखिए। उसके डिक्टेशन ख़त्म होने के बाद आप लोगों के लिए एक दो और भी गुड न्यूज़ है जो कि बोल रहा हूँ। अभी इसको अच्छे से लिखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। The submission of the learned additional Advocate General is primarily that since the husband of the writ petitioner was a work charge employee, the writ petitioner would not have been entitled to the benefit of dying in harness rules, but on misrepresentation of the writ petitioner that her husband was a permanent employee of the Public Works Department, the appointment was wrongly given to her, and on coming to know of the correct facts regarding her misrepresentation at the time of seeking appointment, her appointment as a permanent employee has been downgraded to that of a work charge employee, on which position the husband of the writ petitioner was working. Learned counsel for the appellants has relied on the full bench decision of this court in the case of Pawan Kumar Yadav versus State of UP 2010, 4 Applebeck 2633, in support of his contention that a work charge employee would not be entitled to the benefit of the dying in harness rules. There is no dispute about such proposition, and we accept the said submission of the learned counsel for the appellants. The contention of the learned counsel for the appellants in so far as it relates to the grant of appointment to a dependent of a work charge employee under the dying in harness rules is perfectly justified. A work charge employee who is not a permanent employee cannot be given the benefit of the dying in harness rules. However, as far as the present case is concerned, the writ petitioner had been granted appointment under the dying in harness rules way back on 24th April 1993, and it is presumed that the said appointment was given after verification of the documents which had been filed by the writ petitioner. After more than a decade, if it had come to the light of the appellants that the appointment was obtained by the writ petitioner on misrepresentation or fraud, i.e. by wrongly showing her husband to be a permanent employee of the department instead of correctly placing his position as that of a work charge employee, the option which could have been available to the appellants would be that of cancellation of the appointment and not to downgrade the same from that of a permanent employee to a work charge employee. We say so because appointment under the dying in harness rules can only be given to the dependent of a permanent employee and not. अभी ये डिक्टेशन आप लोगों ने लिख लिया है। अभी इस डिक्टेशन के जो आउटलाइन्स है उसको आप लोग अच्छे से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, रिव्यू कीजिए
और जहाँ-जहाँ आप लोगों को लगेगा कि ये डिक्टेशन का जो ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन आपको ठीक-ठाक से आप लोग नहीं बना पाए, तो उसको गोल कीजिए और रख दीजिए। देन आप लोग जो-जो ठीक-ठाक लिखे, उसको आप लोग टाइप करने के लिए शुरू कर दीजिए। जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा और जो-जो आप लोगों ने गोल-गोल किया है, तो उसको मतलब छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब डिक्टेशन लिखने शुरू कर देंगे, तब अगर उस एक डिक्टेशन खराब आया है, तो उस डिक्टेशन के लिए आप लोग अगर सोचते रह जाएंगे, तो टाइम भी अपने आप ही चला जाएगा। तो उस डिक्टेशन को आप रहने दीजिए और अच्छे से ट्रांसक्राइब कीजिए पूरा। ट्रांसक्राइब करने के बाद भी आपका जो-जो गलत हुआ, उसका अभी इंग्लिश में जो-जो गलत हुआ, क्या-क्या पंक्चुएशन मिस्टेक आया, क्या-क्या आपका स्पेलिंग मिस्टेक आया, क्या-क्या आपका एक्स्ट्रा वर्ड आपने लिख दिए, सब कुछ अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ये सब कुछ आप लोग हमारे स्टेनो सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, वहाँ पर सेम सब कुछ मिलते हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी ऐसे करके कर सकते हैं, नहीं तो आपके हिसाब से आप कर लीजिए। लेकिन ये सेम ऐसे ही प्रोसेस आप लोग फॉलो कीजिए, तो आपका ज़रूर इम्प्रूव होगा। और देन जो-जो मिस्टेक हुआ, जो-जो आप लोगों ने देखा कि ये गलत हुआ, उसको फिर से रिपीट कीजिए, उसको अच्छे से फिर दोबारा लिखिए। फिर नेक्स्ट आप डिक्टेशन सुनिए और अच्छे से लिखिए। ऐसा करके प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपका इम्प्रूव होगा। और इसके साथ आप लोग डेली हमारे साथ जो लाइव डिक्टेशन है, वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा ज्वाइन होना पड़ेगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है, सॉफ्टवेयर का भी लिंक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे आप लोग विजिट कीजिए और सॉफ्टवेयर और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आप लोगों को डेली 6 बजे आप लोगों को सुबह 6 बजे आप लोग क्लास कर सकते हैं। 6 AM टू 7 AM लगभग हमारा क्लास होता है, जहाँ पर लीगल डिक्टेशन, मिक्स्ड डिक्टेशन, जनरल डिक्टेशन वहाँ पर रहते हैं और आउटलाइन्स भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस की या क्लास की कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ते है। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ और भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, यही हमारा मेन मोटिव है। तो और चैनल पर यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे, तो हम लोगों को मोटिव भी मिल जाए कि हाँ, और भी अच्छे से वीडियो बनाने के लिए भी हम लोगों को मोटिवेशन मिलते हैं। तो हो सकता है तो आप लोग अगर अच्छे लगे तो ये आप लोग लाइक कीजिएगा, बाकी कोई फ़ोर्स नहीं है, आपका हिसाब, आपका मर्ज़ी से आप कीजिए। लेकिन प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको अच्छे से एक नौकरी आप लोगों को लेना ही है। यही हम लोगों का सबका मोटिव है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।